मुझे नहीं लगा था मेरा इस अटेम्प्ट में क्लियर होगा। मैंने तो अपने घर पे भी सबको बोल दिया था कि आई ट्राई फॉर जून अटेम्प्ट, बट आई एम आल्सो वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आई क्लियर्ड द एग्जाम एंड इट्स ऑल थैंक्स टू दक्षिता मैम। बस लाइक मैं एग्जाम से पहले आपकी वीडियोस भी देखती थी इवन ऑन Selena Masters, and you have qualified net in your very first attempt. Hello everyone, welcome to UGC Net Textbook. This is Dakshita Singh, your guide for English literature. Today we are in conversation with Muskan. She is a net category qualified student of ours, and she has qualified in this very attempt. That is the examination which was held on 5th of January. I was connected with Muskan, and she was a part of my batch, and it is lovely to have her today here, and it will be so great to discuss her journey. And I think कि हम सब लोग we will have some takeaways from her journey. So let's just go to Muskan and talk to her. Muskan, I would like you to introduce yourself to everyone. Muskan, you are on mute. Yes. I'm Muskan and I cleared NET assistant professor in my very first attempt this time. I'm from general category and I scored 172 marks, 99.08 percentile. I'm in my final years of masters and to be honest मुझे नहीं लगा था मेरा इस अटेम्प्ट में क्लियर होगा। मैंने तो अपने घर पे भी सबको बोल दिया था कि आई ट्राई फॉर जून अटेम्प्ट, बट आई एम आल्सो वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आई क्लियर्ड द एग्जाम एंड इट्स ऑल थैंक्स टू दक्षिता मैम। In my in like last few weeks before the exam, I had my masters assignments and exams. So with last month जो सबसे crucial होता है उसमें ही मैं ठीक से revise नहीं कर पाई थी and I was so stressed। उसकी वजह से मेरा confidence low हो गया था and I was like कि इस बार तो नहीं होगा। But thanks to ma'am, I had attended her all classes, YouTube, her batch classes. I attempted all. She used to have make us do these tests. I had attempted all of them, and I was consistent in my preparation from like August to November, and it's because of that I think it helped me. And I want to mention how I came across मैम। तो मैंने लास्ट ईयर ही डिसाइड किया था कि आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड शुरू में आई वाज सो डायरेक्शनलेस। आई हैड नो आइडिया ये एग्जाम में क्या आता है, क्या पैटर्न है। सो आई वुड स्पेंड लाइक ऑल माय टाइम रिसर्चिंग अबाउट द एग्जाम एंड आई वाज लाइक कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। मुझे I will not take any batch because I just felt like none of like I would see so many videos, but would not feel they were right for me. So I would, but I felt like I was not making any progress. I was just making notes. I was not learning or absorbing anything. So I still remember I saw ma'am's lecture on feminism and queer theory and other literary theories, and like I binge watched her lectures, all literary theory lectures in one day, and like I had this epiphany and I was like कि यही है मैम ही है मुझे उनका बैच लेना है and I just like on an impulse I bought the batch and it was the best decision I made, like genuinely it like मुझे लग रहा है उससे पहले तो मैं प्रिपेयर नहीं कर रही थी। आई थिंक आई अंडरस्टूड एग्जाम एंड लिटरेचर बेटर आफ्टर आई जॉइन द बैच, क्योंकि मुझे पता चला उससे पहले तो मैं बस इंफॉर्मेशन लिख रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू क्रैम दैट, बट इन बैच आई वाज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कि अच्छा ये होता है, ये ऐसे ऐसे एजेस होते हैं, ये थियरीज होते हैं, राइटर्स होते हैं, ये उनके वर्क्स होते हैं एंड दैट्स द थिंग दैट हेल्प्ड मी इन द एग्जाम। So, Muskan, I would like to ask कि since you were pursuing masters then, so the classes must have helped with your masters as well. Like I remember, मैं जब graduation और अपने masters में थी, this is a thing which I feel is a very universal thing कि I personally was a very studious person. Yes, I was a nerd, but I feel that I did not have any sort of knowledge. I used to just mug up things to get good marks. तो मेरे साथ ऐसा था.
And eventually when I like I honestly, I'll be extremely honest, when I teach you people I learn stuff. मेरे लिए भी learning curve ही होता है. I'm learning then I'm teaching. तो ये वाली प्रिपरेशन लाइक आई फील कि अगर मैंने जिस तरीके से अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, अगर मुझे उस टाइम पे पता होता, इट वुड हैव genuinely helped me a lot with my masters. Like things make 10 times more sense when you have this knowledge. एंड तब आप अपने कॉलेज के जो वर्क्स देखते हो, कॉलेज के जो एग्जामिनेशन के आंसर्स लिखते हो, सब्जेक्टिव पेपर्स लिखते हो, it helps you tremendously. So did it help there as well in your master's prep? It did. जैसे आपने बताया ना कि like when we are in our masters and UG, हम बस like we feel like we कि हाँ classes attend कर दी, पास हो गए, but वो knowledge नहीं मिलती because maybe हम इतना ध्यान नहीं देते, या फिर maybe teachers का हो जाता है, but like मैं एग्जाम से पहले आपके वीडियोस भी देखती थी, इवन ऑन लाइक यूट्यूब पे भी सर्च करके या पेड क्लासेस, एंड आई रिमेम्बर कि मैं अपनी लाइक मेरी छोटी बहन है, आई वुड इवन मेक हर वॉच हियर वीडियोस ऑफ लाइक लिटरेरी थ्योरी, बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग लाइक एवरीवन शुड Yeah, about agree. to I look at the world more critically. So and मेरे को genuinely masters में भी आपकी वीडियो से हेल्प हुआ है, and I can like appreciate literature better. एंड इससे मुझे एक और चीज बोलनी है कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोर देयर यूनिवर्सिटी सिलेबस। आपने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली उस पे, एंड आई वुड होप कि सब वो वीडियो देखें, बिकॉज your university syllabus helps you a lot in this exam. तो मुझे पहले लगता था कि it would hinder my preparation, कि यूनिवर्सिटी के साथ मैं कैसे इसका भी प्रिपेयर करूंगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बट यूनिवर्सिटी के लिए भी आप जो पढ़ रहे हो वो भी तो इस एग्जाम के लिए, बल्कि आप और डेप्थ में वो पढ़ते हो। exactly. और हम क्लासेस में आप बहुत जितना डेप्थ में हो सके उतना करवाते हो, यू वुड गिव अस कोटेशंस टू एंड एवरीथिंग, बट लाइक यूनिवर्सिटी के लिए हम और डेप्थ में पढ़ते हैं। एंड इस एग्जाम में लाइक आई स्टिल रिमेम्बर दो क्वेश्चन, एक ब्लीक हाउस का एंड अ वे ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे वर पार्ट ऑफ माय सिलेबस इन माय सेकंड सेमेस्टर लास्ट ईयर, so I was actually able to do those questions. So Yeah. I think like everyone should like try to go back to their university, both UG and PG syllabus, डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको दोबारा, आपके जो नोट्स है just go through them, it actually helps a lot. That is such an important point that you mentioned. The fact that I still have made graduation and masters ke notes, and you can always go back to it, and it genuinely helps. The whole point is कि अगर हमने कभी एक नॉवल एक बार भी पढ़ी होती है, and we see a question on that, there's a possibility कि हाँ मे बी हम लोगों को exact answer, but it might help us in eliminating the options at least, that we can apply some logic. एक reading इतना difference create कर देता है. And obviously when we are preparing for an objective exam, it's not possible for us to read all the works in absolute detail. We have to be very particular with what we are focusing on. But university syllabus, graduation के syllabus, हमारे एग्जामिनेशन में हमारे पास सिर्फ वही हमारे 5 साल होते हैं जब हम एक्चुअल में कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ सकते हैं उस नॉवल को डेप्थ में, प्रॉपर्ली क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, एंड दैट वन अटेम्प्ट ऑफ योर्स genuinely helps you a lot. Going back to your notes will genuinely change the game for you. Thanks for mentioning that, Muskan. Apart from that, Muskan, I would like to know that since you mentioned you started off your preparation in August, you were managing it along with your masters. So how did your schedule look like? Like how did you bifurcate the hours? सो मैं रात को ही अच्छे से लाइक नेट का पढ़ पाती थी आफ्टर लाइक माय क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो आई वुड मेक श्योर कि मैं रात को सोने से पहले आई एम वाचिंग योर क्लास, मैं वो देख के ही सो रही, बिकॉज इफ यू वुड कीप पोस्टपोनिंग दैट वो पाइल अप होता जाएगा, एंड उससे आप फिर लाइक एक साथ भी सारी वीडियोस देखोगे, बट यू वुड नॉट लाइक एब्सॉर्ब एनी इंफॉर्मेशन। एंड सो आई वुड वॉच, मेक श्योर कि मैं आपकी क्लासेस देखती हूँ, क्लासेस देख के मैं उसके PYQ उसी दिन सॉल्व करती हूँ, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज फ्रेश, एंड PYQ आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको लाइक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। एंड बहुत बार ये होता है कि आप क्लासेस के बाद आप थक गए हो एंड यू आर लाइक कि अब मैं दोबारा नहीं पढ़ सकती। सो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, इफ यू डोंट लाइक हैव इंटरेस्ट, तो आप
करंट पैटर्न के हिसाब से इट गेट्स लाइक अ लिटिल डिफिकल्ट। तो मुझे लाइक जेन्युइनली आपकी क्लासेस में इंटरेस्ट होता था। आई वुड थिंक अच्छा आज मैम मॉडर्न एज डिस्कस कर रही है, आज मैम स्विफ्ट डिस्कस करेंगी, एंड योर क्लासेस से मुझे इंटरेस्ट होता था आप जो भी बता रहे हो। एंड आई स्टिल लाइक मैंने कब से रिवाइज नहीं किया आपके लाइक मे बी लाइक जोनाथन स्विफ्ट के नोट्स, बट आई स्टिल रिमेम्बर आपने मुझे क्या क्या लाइक जिस वे में पढ़ाया था। मेरा तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ में, तो आपका अपने आप मन करेगा कि ओके आई वांट टू सी द क्लास। एंड इवन ऑन लाइक माय फ्री टाइम में भी आई वुड गो टू यूट्यूब। एंड आपने जैसे विलियम ब्लेक आज पढ़ाया, ही बिकेम माय फेवरेट पोएट आफ्टर लाइक यू टॉट ओह! हिम। उससे पहले मुझे उनका नहीं पता था। सो आई वुड गो एंड यू नो मे बी सी सम वीडियोज अबाउट हिम। एंड जैसे कोई भी पोएम है, कोई भी राइटर है, आप जाके उनकी पोएम्स पढ़ लो, उनके यूट्यूब पे उनके किसी जैसे वर्क आपको इंटरेस्टिंग लगा, देख लो। सो यू हैव टू डेवलप अ इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑल्सो प्रैक्टिस, यू मैं आप वीकेंड पे हमें प्रैक्टिस करवाते थे। आई वुड मेक श्योर टू अटेंड अटेंड दो सेशंस। एंड उससे ही मुझे कॉन्फिडेंस भी आया एक तो, और ऊपर से आप उस आपको पता है कि ये आप नाम टेस्ट लेने वाली है। अभी भी आप व्हेन लाइक यूट्यूब पे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप सबसे पहले उसका टेस्ट लेते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दोस टेस्ट। लाइव नहीं हो पाता तो आप रिकॉर्डेड अटेंड करो, उसकी वजह से आप रिवाइज तो करोगे। तो मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की वीकेंड पे। आई वुड लाइक डेडिकेट टाइम टू रिवाइज दो स्टफ, एंड देन आपके टेस्ट सेशंस अटेंड करो। इवन लाइक एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि मैंने रिवाइज नहीं किया कुछ भी, बट मेरे से खाली भी नहीं बैठा जा रहा था। सो आई वेंट थ्रू आई योर क्वेश्चन बैंक्स एंड योर मैराथन में आपने इतने क्वेश्चंस करवाए थे, आई वुड जस्ट रिवाइज थ्रू देम। एंड इवन आपने जैसे अपने नोट्स में यू हैड प्रोवाइडेड अस टेबल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स है उनकी टेबल्स आपने प्रोवाइड की थी। सो आई just opened them instead of revising the entire notes. I just and वो हेल्प किया क्योंकि सैमुअल बेकेट के उन्होंने वो प्लेस पूछे थे, एंड वो मैंने बस टेबल से ही रिवाइज किए थे, एंड वो आ गया था। सो लाइक क्लासेस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप अपने नोट से रिवाइज करके आप प्रैक्टिस जरूर करनी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो इंफॉर्मेशन मे बी आपको याद नहीं है। और अगर आप तो मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, उसी वजह से मुझे इसमें हेल्प हुआ। Right, right. It makes इस sense. हाँ। It makes sense. And Muskan, I would like to know कि you started off your journey in August and uh, जैसे notes तो मैं provide करती थी already. Like, did you make any separate notes, any revision notes, or did you rely on the notes that I had provided? Like, what was your strategy when it comes to, because students have a lot of confusion regarding this कि हम लोगों को अपने एक separate notes ही बनाने चाहिए, notes कैसे बनाने चाहिए. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल यू पीपल कि मैं जो दे रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिसर्च करके काम करके ला रही हूँ, इसको यूटिलाइज करो. बट इफ यू वांट and you should, if you like, having revision notes is always the best thing ever, like having something handy. But वो जो सारी डिटेल रिसर्च करनी होती है, एज यू मेंशन कि अगस्त से पहले व्हेन यू यूज्ड टू डू द रिसर्च एंड मेक योर नोट्स, it used to go in absolutely no direction because you had no direction कि कहाँ रुकना है, कहाँ से स्टार्ट करना है. एंड हम क्लूलेस होते हैं जब हम खुद से करते हैं बिकॉज इट्स वेरी वास्ट, इट्स लिटरली लाइक अ सी, यू कांट फाइंड बाउंड्रीज हेयर व्हेन इट कम्स टू नेट सिलेबस. सो व्हाट इज योर टेक ऑन द नोट्स एस्पेक्ट? तो नोट्स जैसे आपने कहा हमें पहले ही डिटेल में सब कुछ देते थे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि अब मैं अलग से जाके इसमें और कुछ ऐड करूँ। वो मुझे पता था आप जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा ही हमें दे रहे हो। तो उस आपकी क्लासेस से अंडरस्टैंडिंग बन गई। उसके बाद एक बार आपके नोट्स अच्छे से रिवाइज़ कर लिए। उसके बाद मैंने 1-2 महीने पहले ये स्टार्ट कर दिया था कि मैं 1 पेज के नोट्स बनाने लग गई थी। जैसे लिटरेरी थ्योरी के थे, तो मैंने हर थ्योरी के 1 पेज पे माइंड मैप टाइप नोट्स बना रखे थे, जैसे रशियन फॉर्मलिज़्म, एंड उसके बाद क्रोनोलॉजी में उसमें सारे थ्योरिस्ट के नाम एंड उनके की टर्म्स जो हाँ, कंसेप्ट.
कि हाँ। ये टर्म्स उसके ये वो, इससे क्या है मुझे डिटेल में सब दोबारा नहीं पढ़ना होगा। आई वुड जस्ट लुक एट दैट पेज एंड वहाँ पे लिखा है डीफेमिलियराइजेशन, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि उसका मतलब क्या होता है। वो मुझे एक बार पहले ही समझ आ गया क्लासेस से, हम्म, वो मेरे पास है, तो बस इससे मुझे याद हो जाएगी एक जगह चीजें, तो मैं फिर अपने माइंड में रिवाइज भी कर सकती हूँ कि अच्छा ये था ये। सो मैंने लिटरेरी थ्योरी के 8 पेजेस के ऐसे नोट्स बनाए थे। इट डजंट इवन टेक दैट मच टाइम हम्म, एंड रिवाइज में आपको फिर इतना ज्यादा बर्डन फील नहीं होता। एंड ब्रिटिश लिटरेचर के लिए मैंने कुछ एजेस के लिए, सबके लिए नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था, बट जैसे रोमांटिक एज, लास्ट के कुछ एजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते तो उनके लिए मैंने बस राइटर्स के नाम एंड मैंने उसके साथ जैसे जैसे पोएट्स के लिए मैंने ये लिखा था कि वो ब्लैंक वर्स में लिख रहे हैं, हीरोइक कपलेट्स में लिख रहे हैं, उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स वो आपने लिस्ट वैसे प्रोवाइड कर रखी थी, तो उससे रिवाइज हो जाता था। बट मैंने एक चीज ये की थी, जैसे स्कॉटिश राइटर्स है, आप हमें क्लास में हमेशा बताते थे कि ये चीज पूछी जाती है, तो हम्म, उनकी अलग से एक लिस्ट बना ली, या सेटिंग्स है कुछ वर्क्स की, तो जैसे ईयर वाइज लिख के उनकी सेटिंग्स लिख ली। ऐसे छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा, बट ऐसी छोटी हम्म, चीज़ें जो मुझे मेरी ये चीज़ें मुझे सब कुछ लिस्ट में और सिस्टमैटिक जैसे आपको है ना वो पसंद है। तो मेरे को ये था कि मैं एंड में ये रिवाइज़ एक जगह कर सकती हूँ। एंड तो मैंने ये बस छोटी-छोटी चीज़ों के नोट्स बनाए थे, तो यही था। मेक सेंस मुस्कान, क्योंकि यूजुअली यही वाली इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग भूल भी जाते हैं, एंड व्हेनेवर यू ओपन योर नोट्स टू रिवाइज सच माइन्यूट डिटेल्स, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन डंप देयर कि आप ओवरवेल्म हो जाओगे आप सारे नोट्स देखोगे तो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यू नीड जस्ट द की पॉइंटर्स, एंड स्पेशली लिटरेरी थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती रिवीजन के टाइम पे। आपको देख के पता पड़ जाएगा कि ओ आई डोंट रिमेम्बर फ्लैन्योर, सो आई जस्ट नीड टू maybe read about this, but I remember the other concepts around this. तो मुझे सारे नोट्स नहीं देखने, मुझे फ्लैन्योर नहीं याद तो मैं फ्लैन्योर वापस जाके देख सकती हूँ, बट रेस्ट मैंने उसी टाइम पे रिकॉल कर लिया कि हाँ आई रिमेम्बर ये होता है, ये होता है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इट वुड सेव सो मच टाइम ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। राइट, राइट, राइट। और मैम एक और चीज, क्रोनोलॉजी में जैसे लिटरेरी थ्योरी की मुझे कभी समझ नहीं आई कि कौन सी थ्योरी पहले आती है कौन सी नहीं। बट आपने जो पढ़ाया था, आपने पहले मार्क्सिज्म पढ़ाया फिर साइको एनालिसिस, आपने उस ऑर्डर में ही पढ़ाया था, तो मैंने आपने जब पढ़ाया था उसके बाद मैंने कभी कॉन्शियसली ये नहीं किया अच्छा कि ये पहले आई वो है, मुझे बस याद था कि मैम ने ये पहले पढ़ाया ये बाद में। सो इट ऑल्सो हेल्प अ लॉट इवन ब्रिटिश में कि आपने सब क्रोनो में ही पढ़ाते थे। सो अगर कोई खुद से भी प्रिपेयर कर रहा है तो ऐसे ही करना चाहिए उन्हें। हाँ, तो बहुत वो इट इट एक्चुअली हेल्प्ड, राइट, कि वो बहुत सटल तरीके से हम लोग क्रोनो पढ़ते थे, क्योंकि हम लोग एक कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं तो इट्स ऑब्वियसली वेरी ओवरवेलमिंग। बट हैविंग योर नोट्स इन एन अरेंज्ड मैनर, क्रोनोलॉजी में अगर अरेंज राइटर्स हैं, थ्योरीज हैं, तो बहुत सटल तरीके से एनी विच वे योर ब्रेन विल प्रोसेस एवरीथिंग इन दैट सीक्वेंस ओनली। Makes sense. Okay. So, Muskan, I would want to congratulate you. I just realized कि मैंने congratulate ही नहीं करा है पूरी वीडियो में. So a huge, huge congratulations to you. It is a huge, big achievement that you are still in your masters and you have qualified net in your very first attempt. And I wish you will, achieve great things in life. And I honestly see potential that you look like a future professor. So I'm envisioning that for you, and I would want to see a picture of you on your first day as an assistant professor, as a scholar, PhD scholar as well. So kudos to you, kudos to your hard work. It is all you, and I am so proud of you. I'm so happy for you. And on this very note, I would like to bring this session to an end. And thank you so much for taking time out for this. It was Thank you. lovely, lovely to have a conversation with you. Thank you so much, Muskan. Thank you, ma'am. Okay.